दादा आपका कैमरा आ रहा है। मैम यू राइट दिस सेंटर लुक योर राइट नाउ वेट ऑन एक्सक्यूज मी वेट थैंक यू दिस वन Okay, yeah. Party आता party पूरा नहीं. Ma'am, yeah. Iधर हमने ले. Actually हमने ले. Yeah. कराची में इधर। Yeah, ma'am, yeah. Wait, ma'am, yeah. कराची, yeah. मैम एक इधर लेना कराची में इधर इधर सामने मैम योर सेंटर वेट आ गया मैम योर नेक्स्ट वन मोर सेंटर मैम join the picture. हम कहाँ खड़े हैं? यहाँ पे कैसे? ऐसे 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 हाँ ऐसे। कैसे? Okay, ma'am, in the center. No. Excuse me. प्राची सामने या वन मोर स्टेडियम Yeah, center. Wait. Ma'am, yeah. चला रहे आता जा रहे लोग Ma'am, yeah. Banerjee brings to you an uproariously, and she was crowned Femina Miss India Earth in the year 2012, and she was also crowned Miss Congeniality during the contest for Femina Miss India 2012. Well, she has lived in different cities, including Sultanpur and Meerut, Varanasi, Agra. And among the many multifaceted things that she's imbibed living in multiple cities, and besides being a wonderfully talented person, she's also an engineer and an MBA. So Prachi, could tell us when you got the time to actually study, get an MBA degree, and be an engineer. So, well, before we start off, and she's won a national award for a documentary on women's issues called Between Dualities. And she's currently the face of Revlon as their relationship expert. Now, if you want to follow her on Twitter, she tweets with the handle @Madhuri and has over 16,000 followers who love her relationship advice. And well, as they unveil a copy of My Trini Girlfriend, we'd like you all to put your hands together. And here's hoping we have many more such novels from Madhuri. All the best. Congratulations, and that's My Trini Girlfriend for you. We would also like to thank Westland Books in a very special way, the publisher of this book, for giving it such a wonderful platform. Congratulations, Madhuri, and thank you so much, Prachi, for doing us the honors. We have a video that we're going to be showing all of you, but you'll have to just turn around because the screen is right there. So just requesting all our guests to kindly have a look at the screen right there. There's a video for all of you. Can we play the video? सामने मैम सामने। प्राची मैम सामने। Maybe no beef, no chicken, no egg, no fish. Actually, no eating of any kind of meat. I'm a vegetarian, na. Didi,
I'm like, I hate that character in the book. How clingy are you to your male friends? What do you do? I think, knowing myself, how much I want my own space, I don't interfere in his space. So I'm not at all clingy. Sometimes for fun, yes, we do it. So me as Prachamisha, I'm not at all clingy, but yeah, sometimes yes, I am. Give us one incident of how you've been clingy. Yeah, right. So when you're upset, you're not partying, you're not going outside. And if your boyfriend is going outside, you'll be like in a very bad mood. You're gonna keep on calling. Okay, I'm at home. You're partying outside with your friends. So that's the time when I behave a little clingy, I think. But that's normal with everyone. Yeah. So you call him continuously, right? No, don't get bad. And then I know that next time I'm gonna do the same thing. So I accept it. What, are there any questions from anybody for Prachi or for me? Then we can quickly take some questions if you want. Otherwise, we'll move on. Is Neville around? Yeah. Alright, so like Madhuri said, we are going to Johnny Depp and Hugh Grant. You don't get Neville Barucha. He's 26 going on 16, that's what his bio says. Known as Mr. South Bombay, he is quite the womanizer, at least his mother says so. Neville's goal is to single-handedly replenish the Parsi race, and he's going to tell us his 5-point plan on doing that. Sources say it's going to be a lot more single-handed than he expected. Now, ladies and gentlemen, Neville has been doing stand-up and improv for about 3 years now, which is not at all surprising because his life is unplanned, unexpected, in the moment, and rather funny, which is exactly what his improv skills are like. हाँ चालू है आपका इंटरव्यू एकदम तैयार है ना आपका? हाँ चालू है शुरू करिए। हाँ ओके ये स्टोरी मेरे दिमाग में बहुत पहले आया था और मैंने सोचा कि मैं एक आदमी की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये किताब लिखूं क्योंकि मैंने इतनी सारी किताबें एक औरत की पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा था और मैंने सोचा कि इस दुनिया में थोड़ी सी ये हंसी थोड़ी कम हो रही है तो मुझे ऐसी एक किताब लिखनी चाहिए जो मतलब सब देख के और सब पढ़ के वो थोड़ा सा लाफ करे, थोड़ा सा जॉय हो जिंदगी में, तो ऐसे मैंने किताब लिखी थी। प्राची जी, आपका कंटिन्यू गर्लफ्रेंड क्या लगता है आपका? मैं बता रही हूँ, मतलब मेरे साथ बहुत ही अच्छा हुआ। दिल्ली वाली जालिम गर्लफ्रेंड, एक गर्लफ्रेंड, क्लिंगी गर्लफ्रेंड। लेकिन ये जो लड़की इन्होंने जैसा लिखा है, इन्होंने पूरा एक लड़की की नज़र से लिखा है और उस लड़की से मुझे इतनी सख्त नफरत हो गई है उस बुक को पढ़ने के बाद। उससे इतना परेशान किया बेचारे लड़के को। तो माधुरी क्या जॉब करी है आपने, मुझे लड़के के लिए बहुत सहानुभूति हुई है पढ़ करके। तो बहुत ही अमेजिंग बुक है, बहुत फनी है, बहुत मजा आया। लाइफ में कोई बॉयफ्रेंड बना है या ऐसे ही गर्लफ्रेंड ऐसे ही चल रहे हैं? नहीं, अब तो कुछ तो होंगे ना। गर्लफ्रेंड थी, मूवी गर्लफ्रेंड है, क्लिंगी गर्लफ्रेंड है, तो हाँ बनाया, मतलब हाँ बॉयफ्रेंड तो होगा ही ना ऑब्वियसली। हाँ, और फिर हम क्लिंगी तो होंगे ना बॉयफ्रेंड के लिए। मतलब अगर उन्होंने कहा है 5 मिनट में फोन वापस करेंगे तो 10 मिनट में तो करो ना। 6 मिनट में तो वापस फोन करके हम पूछना चाहिए ना क्योंकि क्यों वापस फोन नहीं किया। तो फिर जो हमने लिखा है वो राधा, जो ये क्लिंगी गर्लफ्रेंड है इस किताब में, शी इज ऑल्सो लाइक दिस। वो भी ऐसी दिस थिंग फोन करती रहती है, उसकी फेसबुक चेक करती रहती है। और जो आदमी है इसमें ओब्रो क्रांति, ओबी, वो तो बिल्कुल परेशान हो जाता है। सो होपफुली आप लोगों की ज़िंदगी में ऐसे कोई ना आए और आपके रिलेशनशिप्स बिल्कुल ठीक रहें। लेकिन आप ये माय क्लिंगी गर्लफ्रेंड पढ़ के आप मुझे बताइए कि आपको कैसा लगी। प्राची जी, आपके अकॉर्डिंग ये जो बुक है क्या मैसेज दे रही है? ये बुक एक मैसेज दे रही है कि सबकी ज़िंदगी में ऐसी औरतें आती हैं जो आपकी ज़िंदगी हराम कर देती हैं। तो आपको जो है परेशान नहीं होना चाहिए, होप नहीं खोनी चाहिए आपको। आप प्लीज़ रिलेशनशिप को एंजॉय कीजिए, जब तक आप एंजॉय कर सकते हैं, उसके बाद कोई बेहतर ढूंढ लीजिए। मतलब आपका मैसेज ये है कि जो भी बॉयफ्रेंड है वो गर्लफ्रेंड ना बनाए, ऐसा आपको मानना है? नहीं, मैंने परेशान हो जाएगा ना जिंदगी से। आपने मैंने बोला ऐसी औरतें आती हैं ना, कभी को अच्छी भी तो आती है लाइफ में, फिर वो अच्छी होती है, शादी हो जाती है, फिर वो लाइफ लॉन्ग साथ रहते हैं, पर ऐसी आती हैं जो बहुत परेशान करती हैं, जिन्होंने इस बुक में बहुत परेशान किया है। और ये बुक अभी टेलीविजन सीरीज भी बन गई और
ये अभी ये किताब माय क्लिंगी गर्लफ्रेंड एक टेलीविजन सीरीज भी बनने वाली है, तो फिर आप ये किताब पढ़िए और फिर आप टेलीविजन पे भी देख सकते हैं इसको। आपका नाम क्या सूझा कि क्लिंगी गर्लफ्रेंड ही नाम है? ये क्योंकि क्लिंगी ऐसा मतलब जो औरत एक अपने आदमी को पकड़ के बैठती है ना, वो क्लिंगी रहती है, तो मैंने सोचा माय क्लिंगी गर्लफ्रेंड ही लिखूं। और ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा नाम है, पढ़ के समझ में आ जाता है इसका अंदर स्टोरी क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। मैडम देखते हैं रियल लाइफ में लड़के लोग एक लड़का 4 लड़कियों को वो कर रहा है, बट इसके अंदर उल्टा ही है, 4 लड़कियां और सिंपल एक ही लड़का है। एक्चुअली मुझे लगता है कि लड़के आजकल बहुत सिंपल बन गए हैं, मतलब यही माधुरी। और उनको समझ में नहीं आता ये एम्पावरमेंट क्या हो रहा है, तो मतलब उनको ही समझ में नहीं आ रहा है अपने रिलेशनशिप्स के बारे में क्या सोचें, तो इसलिए मतलब वो 4 लड़कियों के पीछे भागते हैं, क्योंकि एक तो क्लिंगी निकल ही जाती है, दूसरी तो अच्छी निकलेगी फिर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो थैंक्स अ मच, लॉट। थैंक यू। रुको ना, एक मिनट। अर्जिता, अरे रुक ना बाबा, इतने दिन बाद in secret. It was assumed that radio was an important form of entertainment and television could never be compared to it. It was since then